Now friend, we will see here things to know. With the increasing cultivation for cash crops, there is a shortage of grass. यानी कि जो कैश क्रॉप्स है तो वो उनका कल्टीवेशन जो है तो वो ज़्यादा बढ़ गया है। उसके कारण जो ग्रास है तो ग्रास की शॉर्टेज हो गई है। वेरियस टाइप ऑफ ग्रास लाइक फोडर क्रॉप, दरफ मीन्स गुजरात दरफ वन, अंजन मीन्स पूसा येलो अंजन, मार्शल मीन्स गुजरात मार्वेल ग्रास वन, Sanyar means Gujarat Sanyar one, and Zinsbo, Daman, Hemeta, and Plateria are grown in Gujarat. Generally, all grass types should be harvested in October, means after 4 months of sowing them. यानी कि ये सब जो ग्रास है तो ये सब ग्रास के टाइप से जो कि अक्टूबर मंथ में उनको हार्वेस्ट किया जाता है, जब उनको सोइंग के यानी कि उसको बोए जाने के 4 मंथ के बाद उनको हार्वेस्ट किया जाता है। Now friend, we will see here about technical and institutional reforms in agriculture, which has been taken by our Indian government. Earlier, farming was carried out by simple and ordinary farm implements like a sickle, spade, hoe, means plow, drill plow, bullock cart, etc. यानी कि पुराने ज़माने में जो फार्मिंग एक्टिविटी होती थी तो वो सिंपल और ऑर्डिनरी फार्म इम्प्लीमेंट से होती थी, जैसे कि सिकल है, स्पेड है, पाउडो मीन्स, देन ड्रिल प्लाव, बुलक कार्ट, तो उससे ये सब जो फार्मिंग एक्टिविटी होती थी। नाउ मॉडर्न इम्प्लीमेंट्स हैव एंटर्ड इनटू इट ऑफ which ट्रैक्टर, ट्रेलर्स, रोटेवेटर्स, etc. are common. But in a present time, the modern equipments are entered in farming activity as like a tractor, trailers, rotavators, etc. Besides the modern equipment like a thresher and harvesters are used in the wheat harvesting. यानी कि ये सब जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स है तो मॉडर्न इक्विपमेंट्स के साथ जो थ्रेशर है, हार्वेस्टर है, तो वो व्हीट हार्वेस्टिंग के लिए बहुत ही यूज होता है, जो कम समय में सबसे अधिक हमें काम देता है। There is an increase in the usage of chemical fertilizers, hybrid seeds, Bt seeds, insecticides, drip irrigation, and greenhouses, etc. So friend, in present time, different type of chemical fertilizers, hybrid seeds, Bt seeds, insecticides, drip irrigation, and greenhouses are used in large quantity. यानी कि जो अभी प्रेजेंट टाइम में अलग अलग जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है, हाइब्रिड सीड्स है, तो वो सभी का अभी यूज हो रहा है, और जिसके कारण अभी जो क्रॉप प्रोडक्शन जो होता है तो वो भी बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में हो सकता है। और इसके कारण जो इंडियन फार्मिंग जो है तो वो अभी डेवलप हो चुकी है। Now friend, we will see here technical reforms. The changes which have taken place in seeds, fertilizers and farm implements in India are known as technical reforms. So friend, here given the definition of the technical reforms. So whatever changes taken place in seeds, fertilizers and farm implements in our country, so this is known as the technical reforms. The farmer who earlier used leather buckets and water wheel now uses submersible pumps or monoblock pump, solar pump, ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर्स। यानी कि जो फार्मर पहले समय में जो लेदर बकेट्स और वाटर व्हील का यूज करते थे तो वो आज सबमर्सिबल पंप्स जो है, मोनोब्लॉक पंप जो है, सोलर पंप, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकल्स का वो यूज करते हैं, जिसके कारण जो वाटर है तो वो वाटर उनको पर्याप्त मात्रा में मिलता है। Second point, chemical fertilizers like D-ammonia phosphate means DAP, nitrogen, phosphorus, potash means NPK, urea and other biofertilizers, liquid biofertilizers, biotech seeds are used. यानी कि जो डिफरेंट टाइप्स के जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है तो वो सभी केमिकल फर्टिलाइजर्स को भी इंडियन फार्मर्स आज के ज़माने में वो यूज करते हैं, जिसके कारण जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है वो भी अच्छी मात्रा में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, फार्मर्स आर कॉन्स्टेंटली गाइडेड थ्रू रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर्स, डीडी किसान चैनल, एसएमएस ऑन मोबाइल बाय द किसान टोल फ्री नंबर
180018015551 Kisan Call Center, government farm web portals, iKhedut, and mobile app like AgriMarket. So friend, government has prepared such type of a planning by which farmers can get guidance from government and they can grow their crop in large amount. Next point, new agricultural research and new techniques are conveyed to the farmers in the villages by ग्राम सेवक. यानी कि विलेजेस जो है तो विलेजेस में ग्राम सेवक के जरिए जो अलग अलग न्यू एग्रीकल्चरल रिसर्च जो होते हैं, कुछ नए नए जो टेक्निक्स है तो वो ग्राम सेवक के जरिए फार्मर्स को दिया जाता है कि जिनके कारण जो फार्मर्स है तो वो भी अपग्रेड हो सके, वो भी डेवलप हो सके और साथ में उनको भी जो नया ज्ञान है फार्मिंग एक्टिविटी के बारे में तो वो भी उनको मिल सके. तो ऐसी जो कोशिश है तो हमारी गवर्नमेंट ने की है. Next point, a farmer training center is established in every district headquarters wherein the farmers are given training. यानी कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर पे जो फार्मर ट्रेनिंग सेंटर एस्टेब्लिश किया जाता है कि वहाँ पे फार्मर्स को जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग दी जाती है और साथ में उनको जो गाइडेंस है वो गाइडेंस भी दिया जाता है. Next point, recent information and guidance are provided to the farmers through agricultural fairs in Gujarat. कि हमारे गुजरात में एक स्पेशल प्लानिंग बना हुआ है कि जो भी इंफॉर्मेशन है और गाइडेंस जो है तो वो फार्मर्स को दिया जाता है और वो एग्रीकल्चरल फेयर्स के द्वारा. नेक्स्ट पॉइंट, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी एंड एग्रीकल्चरल कॉलेजेस आर एस्टेब्लिश्ड इन एवरी स्टेट. Agricultural universities are established at Dantewada, Junagadh, Anand, and Navsari in Gujarat. These universities carry out research and prepare new experts in agriculture. So friends, government had established agricultural university and agricultural colleges in every state. In our Gujarat state, agricultural universities are established in Dantewada, Junagadh, Anand, and Navsari. And these universities carry out new researches and they prepare some experts to agriculture. Next point, besides this, Indian Council for Agricultural Research means ICAR and Department of Agricultural Research and Education means DARE are active at national level. कि उसके साथ नेशनल लेवल पे इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन, तो ये एक एक्टिवली वो वर्क करते हैं जहाँ पे जो फार्मर्स है तो फार्मर्स को वो गाइडेंस देते हैं और फार्मिंग एक्टिविटी पे जो भी पॉलिसीज है तो पॉलिसीज में वो इंटरफेयर करके जो भी गाइडेंस है तो वो देते हैं और इस तरह से उन्होंने ये जो इंडियन एग्रीकल्चर है तो वो डेवलप हो सके तो ऐसे उनके प्रयास होते हैं. Now friend, we will learn about here institutional reforms. The reforms connected with land ownership, crop subsidy and sale of farm produce are considered to be the institutional reforms in India. So friend, here given the definition of institutional reforms. So whatever reforms are connected with land ownership, crop subsidy and sale of farm produce are considered as the institutional reforms. Now we will see which type of institutional reforms. So they are given here. First number, government has discarded landlordism and stopped the exploitation of farmers. यानी कि गवर्नमेंट ने जो फार्मर्स का जो एक्सप्लॉयटेशन होता था जो लैंडलॉर्डिज्म के कारण तो वो दूर कर दिया है. अंडर द लॉ लैंड टू द टिलर मीन्स लैंड टेनेंसी एक्ट, the land tillers have been given their right to become the owner of the land. यानी कि जो लैंड टेनेंसी एक्ट है तो उनके तहत जो भी फार्मर्स है तो फार्मर्स को एक राइट मिला है कि वो लैंड के ऑनर वो खुद ही बन सकते हैं. The disparity among the landowners has been removed by land ceiling act. यानी कि जो लैंड ऑनर के बीच में जो डिस्पेरिटी थी
तो लैंड सीलिंग एक्ट के तहत उसको भी रिमूव कर दी गई है। थर्ड नंबर, फार्मर्स आर गिवन फाइनेंशियल हेल्प फॉर क्रॉप सब्सिडी बाय किसान क्रेडिट कार्ड एंड बाय नेशनलाइज्ड एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। कि फार्मर्स जो है तो उनको फाइनेंशियली हेल्प यानी कि इकोनॉमिकली हेल्प मिलती है किसान के क्रेडिट कार्ड से, और साथ में उनको जो सब्सिडी है सब्सिडी मिलती है, और जो भी नेशनलाइज्ड कोऑपरेटिव बैंक से तो वहां से भी उनको कुछ न कुछ हेल्प मिलती ही रहती है। Farmers are given full insurance protection of their crops through Prime Minister Crop Insurance Scheme। कि जो भी फार्मर्स है तो उनको फुल इंश्योरेंस प्रोटेक्शन मिलता है उनके क्रॉप्स के लिए, और वो जो है तो वो प्राइम मिनिस्टर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, तो उनके अंडर में ये जो फैसिलिटी है तो फैसिलिटी उनको मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन द क्रॉप्स फेल ड्यू टू ड्राउट और थ्रू एक्सेसिव रेन, फार्मर्स आर गिवन फाइनेंशियल हेल्प बाय गवर्नमेंट। यानी कि जब भी अगर बहुत सारी बारिश होती है और उनके कारण उनका जो क्रॉप्स है वो क्रॉप्स फेल होता है, फिर भी जो फार्मर्स है तो फार्मर्स को गवर्नमेंट उनको फाइनेंशियली हेल्प करती है। तो ये सब जो है तो वो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है। By providing legal support, an open auction process is made widespread for the sale of farm products in the marketing yards। यानी कि फार्मर्स को लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करके ओपन ऑक्शन होता है, जो भी फार्मर्स की जो प्रोडक्ट होती है तो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए यानी कि उनको मार्केटिंग यार्ड में बेचने के लिए वाइड जो ऑक्शन है तो वो ऑक्शन ओपनली होता है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट फार्मर्स को मिल सके। Next point, facilities like cooperative societies, market associations, cooperative warehouses, cold storage, transportation and communication etc. have been provided so that the farmers would get the minimum support price of the farm products। So friend, different facilities have been provided by the government to the farmers as like cooperative societies, market associations, cooperative warehouses, cold storage, transportation and communication etc. So they can get a proper price for their farm products। Next point, following organizations are operating for the purchase of the farm products from the farmers at support prices। यानी कि फार्मर्स की जो भी फार्म प्रोडक्ट्स है तो उनको जो दाम है वो दाम अच्छे मिले, इसके लिए जो नीचे दी गई जो ऑर्गेनाइजेशन है तो वो काम कर रही है कि जो फार्मर्स को सपोर्ट करती है, क्योंकि फार्मर्स को भी जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट मिले प्रॉपर। तो यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट नंबर, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में नाफेड के नाम से जाना जाता है। सेकंड नंबर, गुजरात कोऑपरेटिव ऑयल सीड्स ग्रोवर्स फेडरेशन, जिसको ग्रोफेड के नाम से जाना जाता है। थर्ड नंबर, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जिसको शॉर्ट में NDDB नेम से जाना जाता है। तो ये सब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसके जरिए फार्मर्स जो है तो फार्मर्स को अपनी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो प्राइस ठीक से मिल सके। So friend, we have seen here institutional reforms। Green Revolution. Green Revolution took place in our country in the decade of 1960. But before that, there was a time when there was an acute shortage of food grains in the country। So friend, in the decade of 1960, Green Revolution took place in our country, and before that, there was an acute shortage of food grains in our country for their people. An agrarian country had to import food grains। The country was struggling against such dependent conditions कि जो एक एग्रेरियन कंट्री थी तो उनको फूड ग्रेन्स को इंपोर्ट करना था, और पूरी कंट्री जो है तो वो इस कंडीशन के साथ स्ट्रगलिंग कर रही थी। First point, the extraordinary increase in the agricultural production because of improved seeds, increased use of chemical fertilizers, intense efforts of the farmers, widespread arrangement for electricity distribution,
Improved facilities in irrigation, etc. is known as the Green Revolution. So friend, here given the definition of Green Revolution. The extraordinary production of the grains has been increased in our country, and it was possible, it was happened due to improved seeds, increased use of chemical fertilizers, intense efforts of the farmers, widespread arrangement for electricity distribution, and improved facilities in irrigation, etc. So these were facilities. By using of these facilities, our country has developed in a agricultural field. Second point, main objective of the Green Revolution was to increase agricultural production. Farmers were encouraged to use chemical fertilizers and insecticides more. This led to attain the target to increase the agricultural production. So friend, here given the main objective of the Green Revolution, and it was increase in agricultural production and encourage to farmers to use chemical fertilizers and insecticides, and this thing will be achieve the more production to the farmers. Next point, there has been a record production of wheat and paddy due to Green Revolution. Next point, where there was a scarcity of food grains in the country, today there is sufficient storage of the food grains. So friend, at that time there was a scarcity of food grains in our country, but today it is sufficient storage of food grains for the people. Next point, once drought was a hazard of a regular interval in India, its adverse effects are not seen after the Green Revolution. Due to the buffer stock of food grains, the conditions of drought of scarcity are faced conveniently. यानी कि फ्रेंड उस वक्त जो ड्रॉट की कंडीशन जो है, नेचुरल कैलेमिटी जो ड्रॉट है, तो वो रेगुलर इंटरवल के साथ इंडिया में आती रहती थी, मगर जब से ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू हुआ है उसके बाद ये उनकी जो एडवर्स इफेक्ट है तो वो हमारी कंट्री में नहीं हुई है, और उनके कारण जो बफर स्टॉक है फूड ग्रेन्स का और साथ में जो ड्रॉट की जो कंडीशन थी जिनके कारण ग्रेन्स की स्कैर्सिटी खड़ी होती थी, तो वो भी अभी सॉल्व हो गई। So friend, here given one word, buffer stock. Now we will understand this word. Buffer stock is the stock of food grains, namely wheat and rice, that is procured by the government through the Food Corporation of India from states where there is surplus production at a per announced price। यानी कि जो बफर स्टॉक है तो वो बफर स्टॉक जो इंडियन जो कॉर्पोरेशन है फूड कॉर्पोरेशन, तो वो जो ग्रेन्स है तो वो ग्रेन्स का स्टॉक रखता है और उनकी जो प्राइस है तो वो प्राइस भी सेटल करता है। नेक्स्ट, द सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स इज अ लैंडमार्क ऑफ हिस्टोरिक अचीवमेंट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण इंडिया ने जो सेल्फ सफिशिएंसी अचीव की है फूड ग्रेन्स में, और वो एक हिस्ट्रिकल अचीवमेंट मानी जाती है, क्योंकि जब 1960 का डेकेड था तब ये सब जो फूड ग्रेन्स थे तो वो दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता था, मगर आज वैसा नहीं है। Today the production of cash crops has increased and the production of pulses and other cereals has decreased with the repetition of the same crop. To reach the stage where other countries of the world have progressed using better technology in agrarian field, we will have to be ready for next green revolution. So here friend, there is one thing about the worry, and which is the farmers growing more and more cash crops, and they are growing pulses and other cereals in limited quantity। और उसके कारण ये प्रॉब्लम होता है कि जो दूसरी कंट्री के जो स्टेटस है, जो दूसरी कंट्री ने जो प्रोग्रेस किया है फूड ग्रेन्स को डेवलप करने में या फिर फूड ग्रेन्स को ग्रोन करने में, तो हमारी कंट्री उनको भी
या फिर उनके साथ जो कंपटीशन है वो कंपटीशन में टिक नहीं पाती है। और इसके लिए हमें जो नेक्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन है, तो नेक्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। Agriculture is the main occupation in India. The pressure which India had at the time of independence is now reduced somewhat. However, it still has an important contribution in Indian economy. कि इंडिया के जो पॉपुलेशन है तो उनका ज्यादातर जो ऑक्यूपेशन है तो वो एग्रीकल्चर का ऑक्यूपेशन है या फार्मिंग एक्टिविटी है। इंडिपेंडेंस के वक्त इंडिया के ऊपर जो प्रेशर था तो वो प्रेशर अभी थोड़ा सा कम हो चुका है। फिर भी इंडियन इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू अबाउट 1/2 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। यानी कि इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है तो उसमें से 1/2 पॉपुलेशन को जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है तो एग्रीकल्चर फील्ड प्रोवाइड करता है। सेकंड पॉइंट, एग्रीकल्चर होल्ड्स अबाउट 17% ऑफ द टोटल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। यानी कि इंडिया का जो टोटल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है यानी कि जो टोटल जीडीपी है तो उनमें से 17% जितना जो कंट्रीब्यूशन है तो वो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट पॉइंट, पैडी, व्हीट, ऑयल सीड्स, कॉटन, जूट, sugarcane, tobacco, potatoes, etc. are major agricultural products of India. Much foreign exchange is earned from their export. कि ये सब जो है तो वो इंडिया के एक मेजर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है और वो सब जो फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने में जो उनकी एक्सपोर्ट होती है तो एक्सपोर्ट से जो फॉरेन एक्सचेंज इंडिया को मिलता है तो वो ज्यादा मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया रैंक सेकंड इन द वर्ल्ड इन एग्रेरियन प्रोडक्शन। कि एग्रेरियन प्रोडक्शन में जो इंडिया का रैंक है तो वो सेकंड रैंक है। Industries like cotton, textiles, sugar, paper, oil, etc., as well as the industries regarding the food processing, get their raw material from agricultural products only. So, friends, the industries which are here given, cotton, textile, sugar, paper, oil, etc., they are getting their raw material from agricultural products only. Agriculture provides food to the people of India. The Indian contribution is not consistent in the world agricultural market because of irregular and uncertain rain and inadequate facilities for irrigation. So friends, the contribution of India in the world agricultural market is not sufficient due to irregular and uncertain rain and inadequate facilities for irrigation. Food security is necessary for any country today. आज हर एक कंट्री के लिए जो फूड सिक्योरिटी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इफ द डिमांड फॉर द फूड ग्रेन्स इज इंक्रीजिंग एंड इफ द फूड ग्रेन्स हैव टू बी इम्पोर्ट देन द पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ दैट कंट्री मे बी एट अ रिस्क। यानी कि जो फूड ग्रेन्स की डिमांड जब बढ़ जाती है तो फूड ग्रेन्स को इंपोर्ट करना पड़ता है और ऐसा होता है तो जो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस जो मिलती है तो उसके ऊपर एक रिस्क यानी कि एक जोखिम जो है वो रिस्क आ जाता है। We have become self-reliant in the field of grain production due to green revolution। कि आज हमने एक सेल्फ रिलायंट बन गए हैं ग्रेन प्रोडक्शन में और ये सब हो पाया है ग्रीन रिवोल्यूशन के कारण। Along with the increase in farm production, there is an increase in population of the country also। कि हमने जो फार्म प्रोडक्शन है तो फार्म प्रोडक्शन को इंक्रीज किया है मगर साथ में हमारी जो कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन भी बढ़ गई है। In 1951, India's population was at 36 crore 10 lakhs, which today is more than 125 crores. This has increased the demand for food grains। यानी कि 1951 में इंडिया की जो पॉपुलेशन थी तो 36 करोड़ एंड 10 लाख थी मगर आज जो पॉपुलेशन है तो बढ़कर 125 करोड़ से भी ज्यादा हो गई और इसके कारण जो फूड ग्रेन है तो फूड ग्रेन्स की डिमांड भी बढ़ गई है। However, there has been an increase in the production of food grains in our country during last 5 years।
इसके बावजूद जो फूड ग्रेन्स की जो प्रोडक्शन है तो वो लास्ट 5 इयर्स में हमारी कंट्री में ज्यादा बढ़ गई है। In 1950 to 51, India had produced 51 crore tons of food grains, which had increased to a record level of 265.4 crore tons in 2013-14। यानी कि 1950-51 में जो इंडिया का जो फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन था तो वो 51 करोड़ टन था, मगर आज वो बढ़कर 2013-14 में 264.4 करोड़ टन हो गया है। With the food grains which we have today, the minimum requirement of the country can be fulfilled। यानी कि आज जो फूड ग्रेन्स हमारे पास है तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है तो वो रिक्वायरमेंट कंट्री की वो फुलफिल कर सकता है। इट इज नेसेसरी टू मेंटेन बफर स्टॉक एंड टू इंक्रीज इट। ये भी बहुत ही जरूरी है कि हमें बफर स्टॉक को प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए और उसको इंक्रीज करना चाहिए या फिर बफर स्टॉक को हमें बढ़ाना चाहिए। By the buffer stock of the grains, the scarcity of the grains can be prevented during droughts or in the case of inadequate production of the food grains। यानी कि अगर हम बफर स्टॉक को बढ़ाते हैं तो वही बफर स्टॉक फ्यूचर में अगर कोई भी ड्रॉट आता है या फिर फ्यूचर में कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज आती है तो उस वक्त ये फूड ग्रेन्स को हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो फूड ग्रेन्स अगर बढ़ता है या फिर उनका प्रोडक्शन जो बढ़ता है तो वही फूड ग्रेन्स को हम हमारे फ्यूचर के लिए यूज कर सकते हैं। द वेस्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय इम्प्लीमेंटिंग द टेक्निक्स टू प्रिजर्व द ग्रेन्स इन वेयर हाउसेस। यानी कि हमें अलग अलग टेक्निक्स का यूज करके जो फूड ग्रेन्स है तो उनको वेयर हाउसेस में प्रिजर्व करके जो फूड का वेस्टेज होता है फूड ग्रेन्स का तो उनको हमें वेस्टेज होने से बचाना चाहिए और ऐसी जो भी पॉलिसी है तो वो इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। द हंगर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज कैन बी सेटिस्फाइड इफ दिस बफर स्टॉक इज डिस्ट्रीब्यूटेड among them free of charge। It is a strong necessity of the time to stop the wastage of food grains। It is necessary to strengthen food stocking and the arrangements to conserve it। हम ये जानते हैं फ्रेंड्स कि थाउजेंड्स ऑफ फैमिली के हजारों की संख्या में जो फैमिलीज है तो वो भूखी रहती है, मगर हम बफर स्टॉक को प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो फैमिलीज को भी हम जो ग्रेन है तो प्रॉपर प्रोवाइड कर सकते हैं। It is a good beginning that the government has made provision to supply the food grains up to the poor people through the Food Security Act। कि गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छी शुरुआत की है कि उनके लिए जो प्रोविजन बनाया है फूड ग्रेन्स को जो पुअर पीपल है तो उनको सप्लाई करने के लिए, और वो फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत उन्होंने ये जो प्रोविजन बनाया है। तो गवर्नमेंट की एक अच्छा सा एक इनिशिएटिव हम मान सकते हैं कि जिसके कारण जो पुअर पीपल है तो पुअर पीपल को भी फूड ग्रेन्स सफिशिएंट क्वांटिटी में मिल सके। Impact of globalization on Indian agriculture। The policy of globalization has been implemented with the purpose that the Indian farmer can sell his farm products in world markets and earn profit। So friends, the globalization policy has been implemented with the purpose of Indian farmer can sell their farm products in the world market and they can earn profit from their production। Many changes took place in the agricultural field due to globalization। The process to export or import crop productions is made very simple। कि जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जो प्रोसेस है तो वो सिंपल बना दी गई है, जिनके कारण जो फार्मर्स है तो फार्मर्स को ज्यादा प्रॉफिट हो और ज्यादा उनको बेनिफिट मिले। Cotton, chilies and till are now available in Chinese markets and various fruits from world are now available in Indian market। The costly genetically modified BT seeds sold by the multinational companies are now available in India। कि जो costly genetically modified BT seeds है तो वो आज इंडिया के मार्केट्स में अवेलेबल है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज
Due to this, farming has become costly. The production of cotton and maize has increased. With the import becoming smoother, the domestic farm products have to face tough competition. यानी कि इंपोर्ट की जो प्रोसेस है वो ज़्यादा स्मूथ होने के कारण जो डोमेस्टिक फार्म प्रोडक्ट्स है तो वो आज टफ कंपटीशन को फेस कर रहे हैं. Some products have gained global markets, hence the necessity of registration of their patents. कि कई ऐसी भी प्रोडक्ट्स है कि जो ग्लोबल मार्केट्स में मिलती है मगर उनको उनकी जो पेटेंट है तो वो पेटेंट को रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो नेसेसरी यानी कि नेसेसरीली बना दी गई है. It is necessary to register qualitative farm productions as national patent in the world market. और आज जो भी पेटेंट है तो वो पेटेंट को रजिस्ट्रेशन एक इम्पोर्टेंट बना दिया गया है और नेशनल पेटेंट जो है तो वो वर्ल्ड मार्केट में वहां पे उनका फार्म प्रोडक्शन करने जो भी पेटेंट है तो रजिस्ट्रेशन इम्पोर्टेंट बना दी गई है. Second paragraph. To face the competition in agricultural products in global markets, India will have to adopt new technology and concentrate on quality. कि इंडिया को जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में जो कंपटीशन को फेस करना है ग्लोबल मार्केट्स में तो इंडिया को नई टेक्नोलॉजी जो है तो उनको अडॉप्ट करनी होगी और साथ में उनकी जो भी क्वालिटी है तो क्वालिटी को कंसंट्रेट करना जरूरी है. तभी इंडिया जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है तो वो प्रोडक्ट्स के कंपटीशन में टिक पाएगा. A series of planned steps will have to be taken to increase the economic prosperity and solidarity of people. यानी कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बनाने के लिए जो स्टेप्स है तो वो स्टेप सीरीज वाइज लेने होंगे और उस तरह से इंडिया को आगे बढ़ना होगा. विथ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन द प्रोबेबल फ्यूचर इंक्रीज इन द डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड टू मेंटेन द मार्च to economic progress, it is necessary to arrange the strategy for second green revolution. जैसे कि हम जानते हैं कि पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है इंडिया की तो उसके कारण जो फूड ग्रेन से या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है तो उनकी जो डिमांड है तो वो फ्यूचर में बढ़ सकती है और साथ में जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है तो उनको भी मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है. तो ये जरूरी है कि हमें ग्रीन रिवोल्यूशन या सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन की जो स्ट्रेटेजी है तो उनको अभी से ही हमें मेंटेन करने चाहिए. उनके लिए जो भी स्टेप है तो वो अभी से ही हम लेने चाहिए. So friend, we have finished this lesson here. Thank you so much.